Hello learners, welcome to this live session on time value of money. The topic is covered in your main course Financial Management of MBA program, that is MMPC 014. Now, apart from the course curriculum, this topic is of general relevance also, because you know everyone tries to go for retirement planning. सबका ये प्लान होता है कि हम इतना कॉर्पस जमा कर लें रिटायरमेंट के टाइम तक, ताकि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ जब हमारी रेगुलर इनकम नहीं रहती है तो इजीली बिता सकें. तो जो टॉपिक मैं आपको आज कवर कराने जा रहा हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, टाइम वैल्यू दैट मीन्स मनी हैज ए टाइम वैल्यू और वैल्यू ऑफ मनी ओवर द टाइम स्केल. And you can see it has two parameters, future value of money and present value of money. So when we discuss about future value of money, we will be talking about lump sum amount, that is one single amount. If you invest something today, how much it will grow by the end of a future time period, and we will learn about annuity also. Now I will define annuity also for you. We will have present value focus also, but right now in the first part we will talk about future value, then we will go for the present value. If we see the next slide, you can see time value over the scale. We have scale like 0 to 1, 2, 3. So these are the time periods year. Now if I say you invest rupees 1000 today, how much it will become after 3 years at the rate of 10%. So that is simple calculation. I will tell you that calculation also. Then we will proceed further with the annuity also. If you see the next slide, pattern of flow of money, you might be surprised, different flow of money might be there. Lump sum amount, जब हम lump sum amount की बात करेंगे तो हम single amount की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक अमाउंट आज जमा करवाई 3 साल या 5 साल या 10 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि बैंक में जब आप FDR बनवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर, वो तो होती है लम सम अमाउंट. सिमिलरली एन्युटी, अब यू माइट बी सरप्राइज्ड व्हाट एन एन्युटी इज. एन एन्युटी इज ए सीरीज ऑफ पेमेंट in which each payment is same, that continues at a regular interval for a definite time period. Example you can take, if you receive or pay rupees 1000 per annum for 5 years, it is an annuity. Similarly, if you deposit rupees 100 per month in a bank account for 5 years, sometimes you might have heard about recurring deposit in the post office. Every month we deposit a certain amount like 2000, 5000, that continues for 60 months, that is 5 years, and at the end we get the maturity value. So that series is called as an annuity. And then we have something called as perpetuity also. In the perpetuity, what happens? Every time you are getting or paying same money, but it continues for infinite time period, like 100 rupees per month paid over lifetime, that will be a perpetuity, or 1000 rupees per year paid over lifetime, that will be a perpetuity. So these are the three kind of patterns of flow of money. If you see the next slide, future value of money. Future value is the amount that the present value of an investment will grow to over a number of time periods given a particular rate of interest. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ पैसा आज इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों के बाद वो कितना हो जाएगा. अब इसी का हम एप्लीकेशन देखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए. तो आज ही के दिन में, आज ही के सेशन में हम रिटायरमेंट प्लानिंग का ये पता कर लेंगे कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉर्पस जमा करना है आफ्टर 5 years, 10 years, 20 years और 35 years, तो मैं हर महीने या हर साल कितने रुपए लगाऊं. आप लोगों ने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. लोग हर महीने एक डेफिनेट अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं या बैंक में जमा करवाते हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ ए सर्टेन टाइम पीरियड उनके पास एक डेफिनेट अमाउंट इकट्ठी हो जाए. तो यहां हम वो भी सीखेंगे और फिर उसके बाद आगे की और कंसेप्ट्स भी सीखेंगे. नाउ व्हेन वी से
future value is the future amount that comprises of principal amount as well as the interest earned on the principal. Now, future value is dependent upon rate of interest, compounding frequency as well as the time period for which we have made the deposit. It means, as you can see on the slide, future value depends upon rate of interest, time of deposit and the compounding frequency. Let us see the next slide. Future value of lump sum amount, that means one single amount. How do we calculate it? There are two approaches. One is the formula approach and next will be the time value table approach. So, first is the formula approach. As you can see in the formula, future value is equal to present value times that particular formula value. In that, present value is the amount invested by you, R is the rate of interest offered by the bank or the post office, and N is the time duration. Now, if I take you to the whiteboard and we will have one example on calculation of that. Let us assume at 0 time you are depositing rupees 10,000 for a period of 5 years. That means you want to make a FDR, fixed deposit receipt, for 5 years, and rate of interest is 8% per annum. And right now I am assuming compounding is done annually. Now, what is compounding, that also I will explain. अभी हम उस फॉर्मूले को लगवाते हैं या यूज करते हैं. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आर रेज टू द पावर ऑफ 5. सो हमारे यहां देखिए 8% क्या हुई, आर हो गई, एन क्या हुआ, 5 हो गया, एंड प्रेजेंट वैल्यू हो गई 10,000. नाउ व्हेन यू प्लग इन द आर, हाउ यू विल प्लग इन आर इन द फॉर्मूला. 10,000 multiplied with 1 plus 8% means 0.08. Always remember 8% will be 0.08. अगर 12% है तो 0.12 बन जाएगा ये. तो plug in 0.08 raised to the power of 5. अब देखिए आपकी steps क्या रहेंगी. First of all, you will find out the solution for this equation. That means it is 1.08 raised to the power of 5. So, if we use our calculator, 1.08 raised to the power of 5, you get an answer 1.4693. 1.4693. Now, what is the meaning of this 1.4693? अगर आप 1 रुपया आज जमा करवाते हैं तो डेफिनेटली 5वें साल के एंड पे वो 1.4693 हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो यहां 1 रुपया तो आपका खुद का था एंड रिमेनिंग अमाउंट इज योर इंटरेस्ट. अब आप जमा कितना करवा रहे हैं, आप 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं. तो अगर आप इसको 10,000 से गुना करेंगे 1.4693 टाइम्स 10,000, you get it 14,693. So, that is how we have done a solution for annual compounding. As told to you earlier, compounding can be more than once in a year. That is called as compounding frequency. If compounding is done quarterly, जनरली जब आप बैंक में एफडीआर बनवाते हैं तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है. अब आप देखिए साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीने के 4 स्पेल्स होते हैं, तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी 4 एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी विल प्ले ए ग्रेटर रोल. मैं अब आपको इसी एग्जांपल में लेता हूं कि अगर हम ये मान के चलें कि यहां कंपाउंडिंग जो है क्वार्टरली हो रही है, तब फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी. तो मैंने एनुअल कंपाउंडिंग की फ्यूचर वैल्यू का आंसर ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ही रखा है. अगर मान लो यही फिक्स डिपॉजिट 10,000 रुपए आप जमा करवाते हैं आज, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल के लिए, और कंपाउंडिंग क्या हो रही है क्वार्टरली, तब हम फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो अब आप देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. पीवी मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम एंड रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n. अब यहां m प्रैक्टिकली क्या है आपके लिए. m इज कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन ए ईयर.
एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती है? क्वार्टरली में 4 बार होगी, मंथली में 12 टाइम्स होगी। अब हम इसको वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आपकी एनुअल रेट क्या थी? 0.08। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 4, बिकॉज आपकी m की वैल्यू है 4। m मीन्स हाउ मेनी टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन ए ईयर। अब आप इसको किससे रेज करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट बिकम्स 20। इसका मतलब हो गया कि पूरे 5 साल के पीरियड में 20 बार हाफ क्वार्टरली पीरियड्स आएंगे और 20 क्वार्टरली पीरियड्स रहेंगे। वी प्रोसीड फॉर द 10,000 टाइम्स 0.08 divided by 4 will become 0.02. So it will be 1.02 raised to the power of 20. अब आपको देखो करना क्या है इसमें, आपने 1.02 raised to the power of 20 की वैल्यू निकालनी है। So 1.02 raised to the power of 20 gets you 1.4859. That means अगर आप 1 रुपया आज जमा करवाते हैं 8% क्वार्टरली कंपाउंडिंग से 5वें साल के एंड पे वो क्या हो जाएगा? 1 रुपी 48 पैसा, समवेयर 49 पैसा। 1 रुपया आपका खुद का है, 49 पैसा आपका ब्याज है। आप जमा कितना करवा रहे हैं? 10,000। सो हाउ मच यू गेट इट? 10,000 टाइम्स 1.4859, सो इट बिकम्स 14,859। नाउ यू कैन कंपेयर। हमारा पुराना आंसर ईयरली कंपाउंडिंग वाला कितना था? 14,693। वेयर एज जब सेम रेट ऑफ 8% क्वार्टरली कंपाउंडिंग में जाती है तो इट बिकम्स 14,859। सो यहां रोल ऑफ कंपाउंडिंग आप समझ सकते हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको रोल ऑफ कंपाउंडिंग पे बताऊंगा। पे द अटेंशन ऑन द बोर्ड। मैं कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूं, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आप उसका आंसर अपने आप में फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मेरे आंसर से कंपेयर कीजिए एंड देन सी व्हाट इज द डिफरेंस। मान लो आप 4 अलग अलग बैंक्स में गए, आपने चारों से कोटेशन मांगी कि आपको फिक्स डिपॉजिट बनवानी है लॉन्ग टाइम के लिए। फर्स्ट बैंक आपको कहता है, बैंक के 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट विद एनुअल कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या हो रही है? साल में 1 बार। दूसरा बैंक आपको कहता है, बी बैंक, 11.9% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दैट मीन्स साल में 2 बार ही कंपाउंडिंग होगी। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। एंड थर्ड बैंक के पास आप गए, वो कहता है 11.8% क्वार्टरली कंपाउंडिंग। एंड फोर्थ बैंक के पास आप गए, दैट बैंक गिव्स यू ए कोटेशन 11.75% मंथली कंपाउंडिंग। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं इन चारों में से बेटर रेट कौन दे रहा है? अगर हम कंपाउंडिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कहेंगे 12% इज बेटर। बट जैसे ही कंपाउंडिंग पे ध्यान देंगे हम, हो सकता है कोई और रेट बेटर हो जाए। देखने में तो लग रहा है ये सबसे लोवेस्ट है, तो लेट अस ट्राई आउट। जब आपको बैंक ने एनुअल परसेंटेज ऑफ रेट, जिसको एपीआर बोलते हैं, एपीआर स्टैंड्स फॉर एनुअल परसेंटेज ऑफ रेट, आपको कोटेशन दे दी, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगी, ईएआर। सो आइडिया इज दैट हाउ टू कन्वर्ट annual percentage rate into EAR. So it will be 1 plus APR divided by M raised to the power of M. This is the handy formula. You can simply evaluate different quotations of rate of interest. अब अगर मैं इन चारों रेट्स पे ये फॉर्मूला लगाऊं, यहां याद रखिएगा जब एनुअल कंपाउंडिंग है तो M की वैल्यू क्या आएगी? M will be equal to 1. हाफ ईयरली में m विल बी इक्वल टू 2, क्वार्टरली में m विल बी इक्वल टू 4 एंड मंथली में m विल बी इक्वल टू 12। ट्राई करते हैं।
So effective annual rate in this case is 1.12 raised to the power of 1. एंड एक और चीज रखिए, इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट रेट आ जाएगी. सो -1. तो अगर मैं करता हूं इसको तो क्या मिलता है मुझे? 1.12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.12 और 12%. तो एनुअल कंपाउंडिंग में तो 12% ही रही. हाफ ईयरली में चलते हैं, बैंक बी के केस में चलते हैं. इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए 0.119 divided by 2 raised to the power of 2. If we solve it out, we get it 0.119 divided by 2 plus 1 raised to the power of 2 and definitely minus 1 करेंगे आंसर में से. 1.1225 minus 1 you get 0.1225 or written as 12.25%. यही आपको डिफरेंस मिल गया फर्स्ट स्टेप में ही. अपेरेंटली 12% ज्यादा दिख रही थी एनुअल कंपाउंडिंग जिसमें था, लेकिन जैसे ही हमने इसको इफेक्टिव एनुअल रेट में कन्वर्ट किया 11.9% जो कम दिख रही थी वो आती है 12.25%. अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर आप आज 100 रुपीज जमा करवाते हैं तो ईयर के एंड पे आपको ब्याज कितना मिलेगा? 12 रुपीज. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में अगर आप 100 रुपीज आज जमा करवाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर ब्याज कितना मिलेगा? 12.25. तो 25 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है 100 रुपए पे. अब आप देख सकते हैं अगर मान लो आपने 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ की एफडी बनाई है तो आपको कितना इंटरेस्ट का फर्क पड़ जाएगा. सिमिलरली हम देखते हैं तो यहां हमारे पास 12.25 आ गई, तो मैं यहां लिख भी देता हूं इसकी इफेक्टिव एनुअल रेट 12% ही रहती है. इसकी इफेक्टिव एनुअल रेट 12.25. अब हम ये भी वर्कआउट कर लेते हैं कि बाकी जो हमारे पैरामीटर्स हैं, बाकी जो बैंक्स हैं सी एंड डी, उनकी इफेक्टिव एनुअल रेट क्या रहती है. तो यहां देखिए अगर हम इसको वर्कआउट करें, इफेक्टिव एनुअल रेट इन केस ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग 1 प्लस 0.1180 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 4. अब आप देखिए इट विल बी 1, हम सोल्व कर लेते हैं इसको, 0.118 डिवाइडेड बाई 4, सो वी गेट इट 1.0295 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1. सो डेफिनेटली भूलिएगा मत, -1 करना है. 1.0294 रेज टू द पावर ऑफ 4 minus 1, you get an answer 0.1233 written as 12.33%. इसका मतलब इफेक्टिव एनुअल रेट विल बी 12.33, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से भी ज्यादा चली गई. अब लास्टली हम मंथली कंपाउंडिंग वाले को भी करके देख लेते हैं. मंथली कंपाउंडिंग में क्या रहेगा आपके पास? इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आपकी कोटेड रेट, एपीआर इज ऑल्सो नोन एज कोटेड रेट. बैंक ने जो आपको कोटेशन दी है 0.1175 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर ऑफ 12. तो हमारे पास क्या आ गया? इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं. 0.1175 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, सो वी गेट इट 1.00979 रेज टू द पावर ऑफ 12. So answer will be 1.12409 minus 1, that is 0.12409, written as 12.41%. So you can very well see, however apparently लग रहा था 11.75% मंथली कंपाउंडिंग वाला कम है, लेकिन इफेक्टिवली वो सबसे ज्यादा है. अगर आप 100 रुपये आज जमा करवाते हैं, एक साल के बाद उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12.41 by considering monthly compounding. So that is the way we can see the game of compounding. That is the way we can see the game of compounding. So this was, we have learnt about future value of lump sum amount. Now if you see the next slide about future value of an annuity. What an annuity is, I have explained you earlier also. An annuity means
a series of payments in which every time same amount is deposited. So since we are talking about future value, तो मैं डिपॉजिट की बात करूंगा. इंटरवल सेम रहेगा, या तो हर महीने जमा करवाएंगे आप या हर साल जमा करवाएंगे, और वो डेफिनेट टाइम तक चलेगी. अब यहां एन्युटी की भी दो फॉर्म्स होती हैं, रेगुलर एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू. थ्योरेटिकल लाइफ में दोनों चलती हैं. रेगुलर एन्युटी का मतलब हर पीरियड के एंड पे फ्लो ऑफ मनी आता है. अगर मैं ये कहूं आपको 1000 रुपए हर साल मिलेंगे 5 साल तक, तो यहां सिस्टम ये रहेगा कि हर एक साल के एंड पे, पहले साल के एंड पे 1000, सेकंड के एंड पे 1000, एंड देन सिमिलरली फिफ्थ के एंड पे 1000. वेयर एज इफ वी से एन्युटी ड्यू, जिसको एडवांस एन्युटी भी बोलते हैं, इसमें क्या होगा, अगर मैं ये कहूं आपको हर साल 1000 रुपया मिलेगा 5 साल तक, तो हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग मतलब आज आपको पहला 1000 मिलेगा, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको नेक्स्ट 1000 मिलेगा, लाइकवाइज फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग में आपको 1000 रुपया मिलेगा. अगर आप जमा करवा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से होता है. तो एन्युटी के केस में दो कंसेप्ट रहेंगी, एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी रेगुलर. अब आप देखिए, अगर आप हर साल 1000 रुपया जमा करवाते हैं 4 साल तक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एनुअल है, तो 4 साल के एंड में वो अमाउंट कितनी हो जाएगी. तो एक तो तरीका देसी तरीका हो गया, लोकल तरीका हो सकता है जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन वो हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाते हैं अगर लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट होता है या रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है. तो मैं अब आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं. पे द अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. एन्युटी का मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा. हर साल सेम अमाउंट या तो मिलती है आपको या आप जमा करवाते हैं, या हर महीने भी हो सकता है. इट मीन्स इट कैन बी आइदर ए मंथली एन्युटी और ईयरली एन्युटी. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी is equal to annuity amount multiplied with FVIFA at certain rate for nth period. FVIFA stands for future value interest factor for an annuity. अब पॉइंट आता है कि हम इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे. इसकी रेडी टेबल्स भी आती हैं, फाइनेंस की बुक्स के एंड पे मिल जाएंगी. हाउएवर आप FVIFA कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई r. If I take a simple example that you will deposit ₹1000 per annum for 4 years and rate of interest is, let us assume 12% per annum. फोर्थ ईयर के एंड पे ये कितना हो जाएगा. अब यहां देखिए जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए रेगुलर एन्युटी. रेगुलर एन्युटी का मतलब एक एन्युटी, जैसे मैं इसी एग्जांपल को यहां पुट अप करूं, जिसमें आप पहली अमाउंट कब जमा करवाएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, दूसरी कब जमा करवाएंगे, सेकंड के एंड पे, एंड लास्ट कब जमा करवाएंगे, फोर्थ के एंड पे. तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें कि आप 1000 रुपीज हर साल जमा करवा रहे हैं और ये फैक्टर मुझे किस रेट पे पढ़ना है, अगर टाइम वैल्यू टेबल है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम वैल्यू टेबल एट द रेट ऑफ 12% फॉर 4 years. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फॉर्मूला लगा के कैसे सोल्व होगा ये. FVIFA 1.12 because 12% will mean 1.12 raised to the power of 4 minus 1 divided by 0.12. अगर आप इसको सोल्व करते हैं, सो 1.12 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1, आपके पास क्या आंसर आया, 0.5735 डिवाइडेड बाई 0.12. आंसर इज 4.779. That means to say, if every year you are depositing ₹1 starting from the end of first year, at the end of fourth year it will become 4.779. 4 is your own money and 0.779 is the interest earned on that. So now how much you are depositing every year, 4000 multiplied by
4.779, so it will become 4,779. So that is the way we can calculate future value of a regular annuity. Regular annuity means every period you are depositing money at the end of the year, at the end of the month. However, आप कहेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर महीने की बिगिनिंग में जमा करवाना पड़ता है, या हर महीने या हर साल की बिगिनिंग में जमा करवाना पड़ता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, स्मॉल एक्सटेंशन हम यूज करेंगे. अब आप देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एडवांस एन्युटी कैसे काउंट होगा. एडवांस एन्युटी का मतलब हर बार आप पैसे बिगिनिंग में जमा करवाते हैं. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एडवांस एन्युटी is equal to annuity amount multiplied with FVIFA at certain rate for nth period. तो ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने 2 मिनट पहले देखा था. अब आप इस फॉर्मूले को 1 प्लस आर से गुना कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एडवांस एन्युटी. क्योंकि जब आप बिगिनिंग में जमा करवाना शुरू करते हैं तो आपको एक पीरियड एक्स्ट्रा का ब्याज मिलना चाहिए. तो यहां देखिए 1000 आप हर साल जमा करवा रहे थे, FVIFA आपने अभी कैलकुलेट किया था 4.779 और इसको गुना कर दीजिए 1.12 से, 12% मीन्स 0.12. सो वी गेट इट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.779 जो हमारा पिछला आंसर था, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 से. सो वी गेट एन आंसर 5352.48. डेफिनेटली जब आप हर साल बिगिनिंग में जमा करवाएंगे तो ब्याज भी ज्यादा मिलना चाहिए. अकॉर्डिंगली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एडवांस एन्युटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू. सो जब जब वर्ड आए एन्युटी ड्यू, इट मीन्स आप हर पीरियड के बिगिनिंग में पैसे जमा करवा रहे हैं. लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. अब आप देखिए इस फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट जो एन्युटी वाली है उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ में. हम ये सीखेंगे कि अगर मान लो आज आपकी एज 35 ईयर्स है, आप 60 ईयर्स की एज पे रिटायर होंगे, आप हर महीने कितने रुपए जमा करवाएं सो दैट एक डेफिनेट कॉर्पस का मतलब होता है जितनी अमाउंट आप इकट्ठी करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम पीरियड के एंड पे, उसको सिंकिंग फंड भी बोलते हैं. तो मान लो आपने टारगेट लगाया, आप 20 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं जैसे ही आप रिटायर हों, और आज आपकी एज 35 ईयर्स है, तो आप हर महीने कितने की सिप लगाएं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप आरडी क्रिएट कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में एंड लाइक दैट. तो आप हर महीने या हर साल, ये आपकी कन्वीनियंस पे है, बट जनरली लोग हर महीने करवाना चाहते हैं, तो कितने रुपए जमा करवाएं कि 20 करोड़ रुपए बन जाएं जब आप रिटायर होंगे 60 की एज पे. सो ये हम फंडामेंटल सीखेंगे विद इन 2 मिनट्स. अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. मेरा सबमिशन आपसे ये रहेगा, आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो लेट अस मीट अगेन आफ्टर 2 मिनट्स. टिल देन कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू.